Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir. We are in Economics Chapter 6, Foreign Exchange Rate. In previous video, we talk about exchange, foreign exchange and what is foreign exchange rate. And there are two types of foreign exchange rate, fixed exchange rate and flexible exchange rate. In previous video, we talked that the quantity or amount of foreign currency which is held by RBI, Reserve Bank of India, because Reserve Bank of India is the custodian of foreign currencies, and so Reserve Bank of India keep foreign currency as a custodian of foreign currencies or forex, and the quantity or amount of foreign currencies with RBI is known as foreign exchange. In simple words, we can state that foreign exchange known as availability of foreign currency, because whenever we are going to establish a trade relation with different countries, then we have to be import and export a lot of goods and services, and thereafter a economy or country has to be made payments for those imports, and that payment were made up in the form of foreign currency and mostly in dollar. Thus, every country need to be make a stock of foreign currencies for their foreign exchange purpose, and that quantity or amount of foreign currencies which is held by any institution in different countries, but especially in India, it is held by Reserve Bank of India, and thus that amount or that quantity is known as foreign exchange. Now, what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate refers that rate at which a domestic currency gets changed in the foreign currency. यानी विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर किसी देशी मुद्रा को या किसी देश की मुद्रा को हम किसी अन्य देश की मुद्रा में बदलते हैं. In broad sense, it means that foreign exchange rate is the price of foreign currencies. ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर to buy $1, if we have to be made a payment of 50 rupees, it means that the exchange rate for dollar is 50 rupees. $1 equal to 50 rupees. So that is foreign exchange and that is foreign exchange rate. Foreign exchange rate and foreign exchange both are most important nowadays, because almost all countries within in the era of globalization, we all are all over the world, the countries were engaged in foreign trade relations with different countries, and therefore they mostly need the foreign exchange, and they also worried about foreign exchange rate, and foreign exchange rate were decided upon the international capital movement, on the basis of international capital movement all over the world. Now, in this video we are going to talk about the types of foreign exchange rate. In previous video, we, after the definition and clarification about foreign exchange and foreign exchange rate, we mentioned that there are two types of foreign exchange rate. First, fixed exchange rate, and second word flexible or floating exchange rate. तो एक थी स्थिर विनिमय दर प्रणाली और दूसरी थी फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अब फिक्स एक्सचेंज रेट फर्स्ट का हम बात करेंगे. यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट देखेंगे. देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, जिसमें कि सभी देश जो है एक्सचेंज रेट को अपने लिए फिक्स मान लेते थे. तो 1920 से पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद तक, या कहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक, गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड गोल्ड का प्राइस चूंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक समान माना जाता था और उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होते थे, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है उसको हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मानते थे.
ईच कंट्री, और इसमें होता क्या था कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में ईच कंट्री वाज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सभी देशों को अपने करेंसी का जो वैल्यू है वो गोल्ड के रूप में डिफाइन करना पड़ता था। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसीज वाज फिक्स कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। इस प्रकार से एक करेंसी का वैल्यू दूसरे करेंसी के वैल्यू के रूप में फिक्स था, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो कंसिडरिंग गोल्ड था। तो चूंकि जैसे एक करेंसी रुपया गोल्ड से जुटा हुआ है, उसका वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते गोल्ड में, और दूसरी तरफ डॉलर, तो उसका भी वैल्यू हम प्रेजेंट करते हैं गोल्ड में। तो इस तरह से दोनों के वैल्यू चूंकि गोल्ड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के जो वैल्यू हैं वो भी आपस में स्थिर हैं। दैट इज नोन एज, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि 1 रुपया बराबर 0.5 गोल्ड है ग्राम, और $1 बराबर 0.25 ग्राम गोल्ड है, तो ये स्थिर है क्योंकि ये आपस में इनका एक्सचेंज रेट स्थिर है, क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है गोल्ड में वो स्थिर है। तो ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह का फिक्स एक्सचेंज रेट था, क्योंकि इसमें जो करेंसीज के वैल्यूज होते थे उन वैल्यूज को हम गोल्ड के रूप में डिफाइन करते थे, एक्सप्रेस करते थे। और चूंकि गोल्ड का वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता था और एक साथ उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता था, इसलिए जो करेंसीज थे उनके बीच भी एक्सचेंज रेट फिक्स होता था। यानी अब यहां पर सिंपल हो गया कि 5 रुपए के बराबर $1, अगर इस तरह का एक्सचेंज रेट है गोल्ड में फिक्स, तो वहां पर exchange rate between currencies also get fixed, because the value of currency word get tagged with the value of gold, and the value of gold is same for both countries or all over the world. So it was a fixed exchange rate system. Once again, gold standard system of exchange rate. Each country was to define value of its currency in terms of gold. सभी देशों को अपने करेंसी का वैल्यू गोल्ड में डिफाइन करना था। Accordingly, value of one currency in terms of the other currency was fixed. ये फिक्स होता था। क्यों फिक्स होता था? तो कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, दोनों के गोल्ड वैल्यू को कंसिडर अगर हम करते हैं तो दोनों के वैल्यू गोल्ड से जुड़े थे, और इस आधार पर दोनों करेंसी आपस में फिक्स थे। और ये व्यवस्था 1920 से पहले तक चलती थी। इसके बाद कुछ तब्दीलियां आई। तब्दीलियां क्या आई कि ब्रेटन वुड्स, जो कि यूएसए का एक जगह है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व में भयानक तबाही आई, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए, उजड़ गए, एंड देयर वर नीड टू बी रीएस्टैब्लिशमेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दोज नेशंस, एंड फॉर दिस हेवी अमाउंट इज नीडेड इन दैट वे। और सभी ने यह भी देख लिया कि युद्ध से जो हानियां हैं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा एक कोई संस्था हो। तो बहुत सारी बातें हुई उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इकोनॉमिक सिचुएशन को भी फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। उसमें एक प्रयास था ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ताकि तेजी से विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़े, लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे देश की सहायता कर सके खुलकर और स्मूथली। इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए। उसमें एक प्रयास जो महत्वपूर्ण प्रयास था वो ये था कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को लाया गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है? तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करने की स्थिति में नहीं थे। क्यों? इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर वो अपने यहाँ जो करेंसीज या गोल्ड थे, या तो वो बहुत हद तक बर्बाद हो गए थे उनके युद्ध में, या खत्म हो गए थे, उसके बाद वो ऐसे हालात में नहीं थे कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करते हुए अपने आर्थिक विकास को कर सके। और क्योंकि उन्हें पैसे की ज्यादा जरूरत थी, और इंस्पाइट ऑफ देयर स्टॉक ऑफ गोल्ड और करेंसीज विच आर
कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो ऐसे हालात में जो सिस्टम अपनाया गया उस सिस्टम को हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसमें ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है जो कि यूएसए में है, अमेरिका में, और 1944 में यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो है एक सिस्टम, एक्सचेंज रेट के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया विच इज नोन एज ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। और इसी ब्रेटन वुड सिस्टम में जो कॉन्फ्रेंस था, इसी में आईएमएफ की स्थापना की भी नींव डाली गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का एक अनुषंगी शाखा है, जो देशों के खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट और उनके प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करता है और उन्हें बहुत तरह की सहायता देता है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और स्लाइटली डिफर फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट फिक्स होते थे और उनके फिक्स होने का पैमाना था द प्राइस, वैल्यू ऑफ गोल्ड प्राइस, और ये सभी के लिए समान था। इसमें बहुत मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी। इट इज वेरी इजी बिकॉज द वैल्यू ऑफ गोल्ड वर ऑलमोस्ट same in all over world, and there were very easy mathematics to understand or fix the exchange rate under gold standard. But ब्रेटन वुड्स सिस्टम में इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई, और ये तब्दीली क्या की गई, तो तब्दीली के कारण ही इसका एक और नाम पड़ा एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एडजस्टेबल पैग हम लोग जानते हैं कि जब फिल्म में दिखाता है, जब हम लोग पैक बनाते हैं तो वो बराबर बराबर बनना चाहिए और उसको एडजस्ट करते हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा है उसमें से थोड़ा कम कर देते हैं। तो वही सेंस यहाँ है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम लोग एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इसमें इवन व्हेन इट वाज अ फिक्स एक्सचेंज रेट, ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट ही था, सिस्टम allowed some adjustment, so it was called adjustable peg system of exchange rate। यानी इसमें भी जो एक्सचेंज रेट होते थे वो फिक्स होते थे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अलाउ करने की इजाजत थी, और इसीलिए इसको एडजस्टेबल पैग सिस्टम एक्सचेंज रेट कहा गया। इस सिस्टम के अनुसार डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड, पेग्ड मतलब होता है और रिलेटेड, ठीक है, उसको संबंधित करना। Different currencies were pegged or related to one currency, that is US dollar। यानी सारे करेंसीज को now the value of currencies or exchange rate or currency were decided yet at the value of gold, but through from the Bretton Woods conference, the value of currencies of different countries were going to be related with the value of dollar। ठीक है, तो दैट इज पेग्ड विथ डॉलर, यानी कि ऑल ओवर द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड वर रिलेटेड और पेग्ड विथ द वैल्यू ऑफ डॉलर। इसमें एक कम किया गया। और यूएस डॉलर जो एक करेंसी है, यानी पहले सारे देशों के करेंसी को हम लोग गोल्ड के वैल्यू से जोड़ते थे, और अब केवल एक करेंसी यूएस डॉलर को, यूएस डॉलर असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस। यूएस डॉलर को हमने असाइन कर दिया गोल्ड वैल्यू से एक फिक्स प्राइस पे, और बाकी सारे करेंसी को हमने यूएस डॉलर से कनेक्ट कर दिया। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। क्योंकि अगर किसी एक करेंसी का वैल्यू हम डॉलर में देखते थे, तो इसका मतलब कि हम अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उस करेंसी के वैल्यू को हम गोल्ड में भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज value of one currency in terms of US dollar ultimately implied value of that currency in terms of gold। क्योंकि वो करेंसी फिर अल्टीमेटली, क्योंकि डॉलर अल्टीमेटली कंसिडर्ड था और कनेक्टेड था गोल्ड वैल्यू से, बाकी सारे करेंसी यूएस डॉलर से कनेक्टेड थे, तो देयरफॉर there is an indirect relationship with gold। Now the different currencies were indirectly related with gold, directly they are related with US dollar। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू कंट्रीज। और सोना जो है, गोल्ड जो है, वो अंततः अल्टीमेटली कंटिन्यू टू बी, अंततः दो देशों के बीच जो पैरिटी होता है, समता होता है, पैरिटी परचेजिंग, यानी कि एफिशिएंसी, कैपेसिटी ऑफ देयर ओन करेंसी टू परचेज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड इन वन नेशन और अनदर नेशन,
in the form of the currency's value, that is known as parity, परचेजिंग पावर पैरिटी सिस्टम. यानी $1 भारत में कितना खरीद सकता है और अमेरिका में कितना खरीद सकता है, तो इसको हम पैरिटी, या ₹1 हमारा भारत में कितना खरीद सकता है, अमेरिका में कितना खरीद सकता है, दैट इज पैरिटी. और ये पैरिटी अल्टीमेटली गोल्ड को माना गया कि ये पैरिटी केवल गोल्ड कर सकती है, और गोल्ड को इसके लिए कंटिन्यू माना गया. Adjustment in the parity value of a currency was possible, but only if allowed by IMF. और गोल्ड के पैरिटी वैल्यू में या करेंसी के पैरिटी वैल्यू में एडजस्टमेंट हो सकता था, लेकिन अगर इसके लिए केवल IMF अगर इसके लिए प्रयास करे या IMF इसको करे तो ये पैरिटी डॉलर और करेंसी के बीच हो सकती है. अदरवाइज all currencies were related with dollar, and dollar were linked with the gold value. That is, and due to डॉलर को हमने गोल्ड वैल्यू से लिंक किया है और सारे करेंसी को हमने डॉलर से रिलेट कर दिया. अब अगर कोई करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे जाती है, या जैसे हम लोग अखबार और न्यूज़पेपर में हमेशा सुनते हैं कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, कमजोर हुआ, तो ये मजबूत होना ऊपर होना होता है, कमजोर होना नीचे जाना होता है. तो अगर ये स्थिति बहुत ज्यादा होती है तो IMF इसको कुछ एडजस्ट कर सकती है, और उसको एडजस्ट करने के लिए फिर डॉलर को गोल्ड के जो वैल्यू से उसको टैग रखा है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा, और ये केवल IMF करेगा. तो इसको हम लोग ब्रेटन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट कहते हैं. इट इज ऑल्सो type of fixed exchange rate system, because the value of currencies, the value of currency in terms of foreign exchange rate were linked with dollar, and dollar were again linked with gold, so that there is indirectly fixed exchange rate in dollar. In gold standard, the currencies were directly related with gold, so it is a perfect fixed exchange rate. And Bretton Woods system of exchange rate is partially fixed, partially flexible, not so rigidly fixed. ठीक है, because the adjustment can be possible only through the allow when IMF allow for the adjustment, because only one currency was tagged with gold and another currency was tagged with US dollar. तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट था. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम in the form of gold standard system of exchange rate and in the form of Bretton Woods system of exchange rate. Now we all here the fixed exchange rate, the rate of exchange R1, और यहाँ पे ये फिक्स एक्सचेंज रेट है. तो जब R1 फिक्स है, अब इस पे कोई भी देश कितना भी अपने फॉरेन करेंसीज का डिमांड कर सकता है. नाउ आई होप कैन होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फिक्स एक्सचेंज रेट system. You must be write down it in your homework or notebook, and also remember, because several years the board examination question will be asked from this topic. And till then, bye. Okay, stay home, safe home.